So I hope that you are getting my voice. So in last class we were discussing about the UNFCCC. That is the United Nations Framework Convention on Climate Change. Okay, and under that convention we have seen that Kyoto Protocol and Paris Agreement. Okay, and so we will see that in 2019 also this 25th meeting of this conference of parties was happened. Okay, was took place in the Madrid, Spain. And this COP25 is the meeting for the UNFCCC only. So 2019 COP25 was held in और जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो एक बैकग्राउंड था. ओके, अभी उसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीली में, तो अभी चांसेस कम है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आए. बट यस, this year which happened, whether in terms of the European deal or the COP25, that could be asked. Okay, in this year exam. So 2019 COP25 was held in Madrid, Spain, from December 2 to 13, under the presidency of the Chilean government, that is Chile. Okay. And overall, it was a 25th meeting, conference of parties. But for Kyoto Protocol, it was meeting for 15th meeting. Okay. And for Paris Agreement, it was second meeting. So first meeting was took place in 2015, and then this Paris Agreement, for Paris Agreement was a second meeting. तो आप लोगों को याद होगा जब हमने पेरिस एग्रीमेंट लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें हम बात की थी दैट फ्रॉम 2020 वी विल डिसाइड कि ये जो टारगेट्स है उसका क्या होने वाला है, या $100 बिलियन जो आएगा वो कहां से आएगा. सो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय 2020. ओके, अंडर दिस पेरिस एग्रीमेंट. तो पेरिस एग्रीमेंट में यही था कि 2020 से स्टार्ट होगा, जो भी होगा, जो भी दिस बाइंडिंग प्लेजेस है जो भी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली उसके 2020 में स्टार्ट होगा. ओके, दैट वाज डिसाइडेड इन पेरिस agreement, and that is why this 2019 meeting was important. Why it was important? So that if we want to start our pledges or our implementation process in 2020, from 2020, obviously there should be some kind of consensus. Okay, so that is why this particular meeting, that is also called a second version of Paris Agreement. Okay, Madrid conference. So it was very important to decide that what will happen in future 2020. After 2020. Okay. So countries agreed in Paris in 2015 to revisit their climate pledges by 2020. So what are the key issues? So what are the key issues? Just a second. So what were the key issues which were discussed in this particular Madrid conference? Okay, COP25. So first issue that was discussed was pre-2020 implementation and ambition gaps. Okay. So what that mean that as you know कि हमने पढ़ा था कि 28 से लेकर 12 तक फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल के बेसिकली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस थी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए. उसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल जो सेकंड वर्जन था, जो टारगेट्स थे बेसिकली दीज वर फ्रॉम द 2050 टू 2020. आप लोगों को याद होगा जब लोगों ने बात की थी दैट सेकंड टारगेट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके लिए 137 कंट्रीज ने साइन कर दिया था, बट इट वाज नॉट साइंड बाय 144 कंट्रीज व्हिच वर रिक्वायर्ड, and that is why second pledges period for developed countries could not be achieved. Okay, so ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था. So जो 2015 से लेकर 2020 तक जो क्योटो प्रोटोकॉल जो सेकंड जो क्योटो प्रोटोकॉल था बेसिकली सेकंड टारगेट जो अचीव करने थे वो हमने किए नहीं. ओके, बिकॉज नो कंट्री टुक दैट सीरियस. तो इसमें ये पर्टिकुलर इस मीटिंग में ये भी इशू था कि जो प्री 2020 के जो टारगेट्स थे जो हमने अचीव नहीं किए, व्हाट अबाउट दैट? ओके, so this was a issue, okay, which was discussed in this particular meeting. Okay, so on the matter of pre-2020 gaps in commitments and actions of developed countries under Kyoto Protocol was discussed,
but no concrete result was came out. Okay, सो कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, खासकर यूएसए की यदि बात करूं मैं, और यूएसए तो अभी इसको सीरियसली ले नहीं रहा। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज विथड्रॉइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेरिस एग्रीमेंट एंड एज वेल एज क्योटो प्रोटोकॉल। सो nobody was taking serious, okay, डेवलप्ड कंट्री सीरियस नहीं ले रही थी इसको। दैट की जो चला गया, जो बीत गया, उसको बेसिकली भूल जाओ, और इस तरह से उनका एक स्टैंड था, ओके, एटलीस्ट फॉर फ्यू कंट्रीज, फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज। But the developing countries like India, okay, India took a tough stand in this particular pre-2020 implementation. What kind of tough stand India took? And India said that without considering this pre-2020 gaps, we won't consider any other agreement, further agreement. Okay, यहाँ तक बोल दिया था. Okay, so that is why there were other developing countries also which took this kind of stand. So that is why the no consensus was achieved, okay, for this pre-2020 implementation and ambition gaps. In fact, ये जो पूरी Madrid जो conference हुई थी, this was COP25. This was a failed conference. Okay, no concrete result was came out, and in fact, it was the longest meeting of UNFCCC till now that happened in past. Okay, so अभी तक सबसे longest meeting थी. Still we could not achieve any result from this particular meeting. So it was a high disappointment. Okay, this meeting was a highly disappointment for this climate change. Okay, so एक तो ये था कि ये इशू था कि 2020 जो टारगेट्स हैं, जो डेवलप कंट्रीज अचीव करने थे, उसको अचीव किया, उसको बेसिकली कैरी फॉरवर्ड किया जाए। ओके, तो ये इशू था, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। जो नहीं किया आपने, वो आगे आप अचीव करो, उसको भी ऐड करो आप। सेकंड जो इशू था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, जिसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में। सो आर्टिकल 6 अंडर द पेरिस एग्रीमेंट दैट टॉक्स अबाउट द कार्बन मार्केट इशू। तो जो जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कार्बन क्रेडिट स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई थी। ओके, इसी तरह से पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी एक कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, वर्ड एक कार्बन मार्केट। तो कार्बन क्रेडिट से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कार्बन जो मार्केट है बेसिकली। सो विल सी हाउ इट इज डिफरेंट। और यही इस मीटिंग के सेंट्रल थीम थी। तो उनको था कि एटलीस्ट कार्बन मार्केट के ऊपर कंसेंसस हो जाए इस बार इस मीटिंग में। ओके, एंड दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, इशू। सो उन्होंने सोचा कि इस बार एटलीस्ट इस इशू के ऊपर कंसेंसस हो जाए, एंड इट वाज अ सेंट्रल थीम। इसके ऊपर सारे वर्क कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली नो कंक्रीट रिजल्ट came out even for this particular issue, carbon market issue. So हम समझते हैं कि what is this carbon market issue? Under the Paris Agreement, every country has to take action to fight climate change. These actions need not necessarily be in the form of reduction in greenhouse gas emissions, which can constrain economic growth. It creates an alternative mechanism in the form of carbon market. तो ये तो पता है कि हमें कि सबको क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट करनी है, पर इस बार इन्होंने कार्बन क्रेडिट से थोड़ा सा अलग कैसे है ये कि कार्बन मार्केट में इन लोगों ने बोला कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको अपने एमिशन से कम करने हैं, कार्बन एमिशन से कम करने हैं या अपनी ग्रीन हाउस गैसें रिड्यूस करनी है, तो ये जरूरी नहीं है। व्हाट यू कैन डू, व्हाट अल्टरनेटिवली यू कैन डू, दैट यू कैन इन्वेस्ट in other countries, like developing countries. You can provide them money or technology. यदि आपने किसी और कंट्री में, किसी डेवलपिंग कंट्री में भी आप लोगों ने कार्बन एमिशन कम कर दिए, then also it will be considered that you are working for the climate change, working against the climate change. एक तरह से ये है कि फर्ज करो यूएसए, ओके, यूएसए ने अपने कार्बन एमिशन कम नहीं किए, ओके, अपनी कंट्री के अंदर, एंड यूएसए इन्वेस्टेड इन द ब्रिक किलन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो बेसिकली ब्रिक किलन्स हैं, जहाँ पर ईंटें बनती हैं, ओके, तो वहां पर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, यूएसए ने इन्वेस्ट कर दिया, ताकि यहाँ का जो बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नई टेक्नोलॉजी देने से पोल्यूशन कम हो गया इंडिया में। ओके, सो बाय दैट
it will be considered that USA is working for reducing the carbon emissions. तो वो जो कार्बन क्रेडिट्स है वो यूएसए को मिल जाएंगे. ओके, तो कुछ इस तरह के मैकेनिज्म किए उन्होंने. So if a developed country is unable to meet its reduction target, it can provide money or technology to the developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज ने इसको इसलिए एक्सेप्ट किए इस तरह की मैकेनिज्म को ताकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी आए और इन्वेस्टमेंट भी आए. ओके, फॉर एग्जांपल ब्रिक kilns in India and then claim the reduction of emission on its own. यदि मान लो यूएसए ने कार्बन एमिशन कम करवा दिए इंडिया में बट ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी और मनी, then USA can claim that it has reduced the carbon emission. Okay, so this is different from the carbon credit. Okay, carbon credit में ऐसा नहीं था, but yes, this is different from the carbon credit. So there were three relevant issues under carbon market. First, what happens to carbon credits earned in the Kyoto regime but not yet sold? एक तो ये इश्यू था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल रिजाइम से कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने एक्यूमुलेट कर रखे हैं कार्बन क्रेडिट्स कि हम इसको बेचेंगे फर्दर. ओके, तो उनका क्या होगा? दिस वाज द फर्स्ट इश्यू अंडर दिस कार्बन मार्केट इश्यू. सेकंड वाज द इश्यू ऑफ डबल काउंटिंग. मान लो यूएसए ने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में, तो ये इंडिया भी उसको बेसिकली कहेगा कि हमने एमिशन रिड्यूस किए हैं एंड यूएस भी बोलेगा हमने एमिशन रिड्यूस किए हैं. सो देयर विल बी डबल काउंटिंग. एमिशंस तो एक बार ही रिड्यूस हुए हैं. So that was another issue. And then transparency mechanism. How this whole process will be transparent. This was the another issue. So we'll discuss the first issue, that is unsold credits. So developing countries have several million unsold certified emission reductions. जब ये emission reduce हो जाते हैं कंट्री करती है जिसको परमिट किए गए उससे कम यदि कार्बन एमिशन करते हैं उसको सर्टिफिकेशन मिलता है. ओके, इसको बोलते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, ईच रेफरिंग टू 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन रिड्यूस्ड फ्रॉम द क्योटो रिजाइम. तो ये जो कार्बन क्रेडिट्स है पहले भी बात कर चुके हैं दैट इट इज बिलोंग्स टू क्योटो रिजाइम, क्योटो प्रोटोकॉल. एंड डबल काउंटिंग मींस एज कार्बन क्रेडिट्स double counting means as carbon credit are traded as commodities multiple times among countries or private parties. Thus credit should not be counted at more than one place. जो कार्बन क्रेडिट जैसे हमने बात की कि यूएसए ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, so it should not be multiple counted because these carbon credits are traded between multiple parties. And third, so how we will track these carbon credits? And third is the transparency issue. The developing countries argue that the countries that reduced emissions should be able to show it even after selling the credits, and that adjustments. सर ये डबल काउंटिंग वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर. डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग में हमने ये बोला कि मान लो फर्स्ट पर मैंने एग्जांपल दिया था कि यूएसए इन्वेस्ट करता है इंडिया में. ओके, वहाँ की ब्रिक किल्न्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, तो इंडिया के अंदर पोल्यूशन कम हुआ है बेसिकली. ओके, लेकिन कार्बन मार्केट में हमने ये बोला कि दैट यूएसए कैन क्लेम फॉर दिस कार्बन एमिशंस बिकॉज़ यूएसए हैज ट्रांसफर्ड मनी एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया. ओके, एक तरह से यूएसए क्लेम कर रहा है कि ये कार्बन क्रेडिट्स हमने अचीव कर लिए बिकॉज़ वी हैव रिड्यूस्ड एमिशंस इन इंडिया बाय ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी एंड मनी. और सेकेंडली मान लो फर्स्ट करो इंडिया भी क्लेम कर लेता है कि यस हमारी कंट्री के अंदर रिडक्शन हुआ तो सो डेफिनेटली इंडिया ने रिड्यूस किए कार्बन एमिशन. इंडिया बोल देगा यस ब्रिक किल्न्स तो हमारी कंट्री में लगी हुई है और हम लोगों ने रिड्यूस किए बेसिकली, यूएस ने सिर्फ मनी ट्रांसफर की थी, बाकी काम तो हमने किए. सो देयर विल बी इशू ऑफ डबल काउंटिंग. तो कार्बन एमिशन तो एक बार ही रिड्यूस हुए, इंडिया में रिड्यूस हुए, यूएस ने अपनी कंट्री में रिड्यूस नहीं किए, बट यूएस भी इसको क्लेम कर रहा है और इंडिया भी क्लेम कर रहा है. दैट विल बी डबल काउंटिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि मान लो ये कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड होते हैं, इसके अंदर पता है कि ट्रेड होते हैं. ओके, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेड हुए, मान लो जिससे कार्बन क्रेडिट्स अचीव किए उसने एक बार काउंट कर लिया कि यस मैंने कार्बन क्रेडिट्स रिड्यूस कर लिए, तो मान लो ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, कार्बन क्रेडिट्स को ट्रांसफर करने वाला, सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है प्रोसेस, तो ऑब्वियसली देयर कुड बी इशू ऑफ डबल काउंटिंग. तो मल्टीपल ट्रेड होता रहेगा, कार्बन क्रेडिट्स आगे आगे जाते रहेंगे, सो मे बी
ये डबल काउंट हो सकता है. Okay, there will be a full proof mechanism so that these carbon credits could not be doubly counted. So this was the thing. So selling the credits, and that adjustment should be made only for subsequent transfers if any. Okay. So third is the about the transparency issue. So आगे चलते हैं. In nutshell, annual climate talks ended in Madrid, Spain, with a disappointing outcome. The failure of talks underlined starkly the massive gap between what scientists say the world's nations need to do on climate change and what the most powerful political leaders on the planet are prepared to even discuss, let alone actually do. So हम यहाँ पर criticize कर रहे हैं basically, in fact bitterly criticize कर रहे हैं कि rather than actually doing something to contain this climate change, the political leaders of this planet are not prepared even to sit together and to discuss this serious issue. Okay, that kind of criticism we are making. Obviously, you can discuss, you can use this kind of criticism in your answer writing also. But होता क्या कि ये थोड़ा सा critical mode में इसको रखा है इस meeting को basically हम लोगों ने. But whenever you will write answer in your main examination, तो आपको थोड़ा सा balance करके answer लिखना होगा. Okay. So because अभी आप जब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाना आप लोगों को, इसको सर्च करके देखो COP 25 का, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, कि हमारी गवर्नमेंट इस मीटिंग को कैसे देखती है. सो वहां पर लिखा होगा दिस मीटिंग वाज सक्सेसफुल. ओके, वहां पर इस तरह से लिखा होगा. बिकॉज यस सक्सेसफुल कैसे, बिकॉज वी हैव पुट दिस इशू ऑफ प्री 2020 टारगेट्स और ये सब. ओके, सो इट्स नॉट ट्रू. ऑब्वियसली दिस मीटिंग वाज नॉट सक्सेसफुल एंड because our government directly cannot write, official government कोई भी write नहीं करेगी अपनी कंट्री में कि ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई. ये सब एनालाइज करते हैं बेसिकली हम लोग. ओके, सो द डिस्कशन वाज पोस्टपोन. तो जो भी डिस्कशंस था ये पोस्टपोन हो गया कि अगली मीटिंग में देखेंगे ये सब जो इशू यहाँ पर अभी कंसेंसस नहीं बना है. इनफैक्ट इतनी लंबी मीटिंग चली थी तो हमें लगता था कि कंसेंसस बन जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट नथिंग हैपेंड. So all these things are postponed to the next meeting, which is going to happen in the Glasgow, Scotland, UK. Glasgow is a city in Scotland, state of UK. Okay. So this was particularly about the COP 25. Sir, this carbon market issue was discussed and not passed, or is it passed? Not passed. Okay. कुछ भी इसमें साइन हुआ, कुछ भी पास नहीं हुआ. सिर्फ कार्बन मार्केट एक इशू शुरू से डिस्कस कर रहे थे हम लोग. पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये सब इसका डिस्कशन चल रहा था. ऐसा मान के चल रहे थे बिकॉज 2020 से हम लोग को इसको इंप्लीमेंट करना है पेरिस एग्रीमेंट. वैसे मान के चले 1990 में पास हो जाएगा ये. ओके, इसको 2019 में पास करने के बाद 2020 में इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे. बट नाउ इट हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर 1 more year. सो अभी देखेंगे इसका क्या होता है अगले साल. सो अपार्ट फ्रॉम दैट one major thing was happened, that was the European Green Deal. Okay, again इसी issue से related है, basically UNFCCC से related है. So European Green Deal, okay, and it is also called carbon neutrality by 2050. इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकता है preliminary या मेंस में, because it was a good development from the European side. अभी जितने भी कंट्रीज है, जो मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ आप लोगों को, जितनी भी ये कंट्रीज हैं, यदि आप मेरे को पूछो कि सबसे सीरियस कंट्री कौन सी है अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर, देन आई विल से दैट यूरोपियन कंट्रीज. ओके, यूरोपियन यूनियन इज द मोस्ट सीरियस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वांट टू रियली वांट टू डील विद दिस क्लाइमेट चेंज इशू. ओके, तो इससे पहले भी जब भी कोई ऐसे प्लेजेस ली गई है तो सबसे ज्यादा जो प्लेजेस लिए यूरोपियन यूनियन ने लिए. ओके, and this time also in this particular Spain Madrid meeting also एक रीजन ये भी बताते हैं कि ये मीटिंग इसलिए भी फेल हुई बिकॉज ऑफ वीक लीडरशिप ऑफ द चिलियन गवर्नमेंट. बिकॉज इसने प्रिसाइड इस पर चिले ने किया था एंड द लीडरशिप वाज नॉट दैट स्ट्रांग, तो वो कंसेंसस करवा नहीं पाए चिले. इवन इफ इट वुड बी इंडिया भी होता डेफिनेटली तो कंसेंसस एक हो सकता था. ओके, बट द लीडरशिप ऑफ द चिले गवर्नमेंट वाज वेरी वीक. एक रीजन ये भी बताते हैं से फेल मीटिंग क्यों हुई. ओके, सो यूरोपियन ग्रीन डील, what is this, and it is also called carbon neutrality by 2050. So amidst the chaos of COP25 in Madrid, the European Commission, because we know that it is the highest political body of the European Union, European Commission, हमने पढ़ा था जब European Union पढ़ रहे. So European Commission published its European Green Deal
ऑन दिसंबर 11, 2019। तो उन्होंने एक अपनी डील पब्लिश की, यूरोपियन ग्रीन डील। द डील aims to be a comprehensive strategy document which puts the European Union on a trajectory toward no net emissions of greenhouse gases in 2050। तो उन्होंने बोला क्या, जैसे कि नेट न्यूट्रलिटी उस टाइम काफी चलता था, 4-5 साल पहले नेट न्यूट्रलिटी काफी फेमस होता था। ओके, एंड फिर दिस नेट न्यूट्रलिटी केम फ्रॉम इंडिया ओनली। मैं बताता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी, ये उस टाइम हम पढ़ते थे ये सब चीजें। ओके, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता था कि ये जो फेसबुक थे, ये जो बाकी जो कंपनीज थी, इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था that this Facebook platform will be free for everybody। ओके, जैसे कि मान लो किसी के पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, ओके, लेकिन वो फेसबुक फिर भी यूज कर पाएगा। मान लो मेरा टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल है, तो मेरे पास एयरटेल का नेटवर्क है, ओके, तो मैंने कोई एयरटेल का इंटरनेट का प्लान नहीं लिया हो, बट फेसबुक पैसे देगा एयरटेल को कि आप अपने कस्टमर को फ्री इंटरनेट दो सिर्फ फेसबुक यूज करने के लिए, उसके लिए पे मैं आपको करूंगा। ओके, तो आप कुछ और भी खोलोगे तो आपको नहीं खुलेगा, सिर्फ आप फेसबुक खोलोगे तो वो खुलेगा। ओके, सो ये चीज बेसिकली लोगों को गलत लगी, इट वाज अनएथिकल, बिकॉज यू आर डिफाइनिंग आवर क्राइटेरिया दैट कि आप यही देखो इंटरनेट पे, क्योंकि आपको बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। सो इट वाज बिटरली क्रिटिसाइज्ड स्पेसिफिकली इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ इस चीज का। ओके, एंड देन दैट टर्म वाज इमर्ज नेट न्यूट्रलिटी। इसका मतलब क्या कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब कि आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म्स के बीच में, या तो सारा इंटरनेट दो या फिर कुछ भी मत दो। ओके, यदि आपको फ्री बाइस देना ही है, फ्री इंटरनेट देना ही है, तो आप सारे प्लेटफॉर्म के लिए दो, जनरल ब्राउजिंग के लिए भी दो, rather than specifying a particular platform। Okay, so at that time this issue was and then we have seen the immaturity of Indians ऐसे काफी mature है इन सब चीजों में, and पूरा whole world recognized the maturity of Indians। Okay, so likewise इस तरह से यहाँ पर एक टर्म दोबारा से फिर एक इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज दिस न्यूट्रलिटी ऑफ एमिशंस बाय 2050। इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन यूनियन ये बोलता है कि जो एमिशंस बेसिकली हम लोग 1990 में करते थे, वही एमिशन हम 2050 तक करेंगे। ओके, इसका मतलब हमने कोई भी एमिशंस इंक्रीज किए ही नहीं है। 2050 में जब हम पहुंच जाएंगे तो हम इतना रिड्यूस करते हैं अपने एमिशंस कि जो 1990 में जो हम एमिशंस करते थे, वही ऐसा लगे कि 2050 में भी उतने एमिशंस हम कर रहे हैं। सो इट वाज अ बिग डील फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ओके, ये काफी अच्छा मूव है यूरोपियन यूनियन का, दैट मींस टू रिड्यूस दिस मच ऑफ कार्बन एमिशन। ओके, we will be neutral in carbon emission by 2050। ओके, सो सिग्निफिकेंस देखते हैं इसके और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इसको। द EU हैज प्रोमिस्ड टू ब्रिंग ए लॉ। तो पहले तो यूरोपियन यूनियन ने आपस में बैठ के ये डील साइन की और कंट्रीज ने साइन किया बेसिकली। ओके, तो यूरोपियन यूनियन हैज प्रोमिस्ड टू ब्रिंग ए लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर कंट्रीज। अब यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, सो ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स promised to bring a law binding on all member countries to ensure it becomes climate neutral by 2050। The European Union is now the first major emitter to agree to 2050 climate neutrality target। तो ये वर्ड प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। यदि आप मेरे से पूछो कि यदि इनफैक्ट मैंने बताया कि हर साल क्वेश्चन आता है प्रीलिम में इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के ऊपर इस बार इसके ऊपर एक मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड ओके फॉर दिस टॉपिक, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। सो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी टारगेट एंड द यूरोपियन यूनियन बिकेम द फर्स्ट कंट्री। और ऐसा नहीं है कि पहली बार सीरियसनेस दिखाई है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन वाज ऑलवेज सीरियस अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज। So in its climate action plan declared under the Paris Agreement, the European Union was committed to making a 40% reduction in its emission by 2030 compared to 1990 levels। अभी अब देखो कि जो इंडिया के जो टारगेट्स थे, ये जो यूरोपियन यूनियन पूरे क्लियर यूनियन की बात करते हैं, इसमें 27 कंट्रीज आ गई। जब भी इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कंट्रीज यूरोप की आती हैं, तो वो यूरोपियन यूनियन के बैनर के अंदर ही आती है। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल यूनिट है, ओके, जिसमें 27 मेंबर कंट्रीज अभी फिलहाल। सभी आपको देखने से लग रहा हो कि इतना तो हमने कर लिया,
33 to 35% मैंने आपको बोला था कि जो इंडिया ने बोला था कि हम कार्बन एमिशन रिड्यूस कर लेंगे 2030 तक, और 2000 तो ये आपको लगा कि कुछ वैसे ही है, जिसने 40% बोल दिया, 7% ही ज्यादा बोला है, ओके, पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ये देखो आप लोग, बेस लेवल इन्होंने क्या लिया, दे टुक द बेस लेवल ऑफ 1990 और हमने क्या लिया था 2005, सो इट इज वेरी ट्रिकी। तो ये फिगर के साथ साथ ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ओके, कि आप कौन सा बेस लेवल चूज करते हो, बिकॉज 25 में यदि आप चूज करते हो तो उसका मतलब आपने कार्बन एमिशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई, ओके, 1990 में कार्बन एमिशन बहुत कम थे, ओके, सो ऑब्वियसली 1990 लेवल का बेस है तो उसको मतलब आपको बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि 1990 में ऑब्वियसली उतना पोल्यूशन नहीं था, ये था 25 में था, ओके, एंड दैट इज व्हाई it was a strong reduction in the emissions, okay, that is committed by the European Union. And in fact ये जो टारगेट यूरोपियन यूनियन ने दिया था under Paris Agreement, this was the highest that was given by any other country, any other developed country. इसलिए मैं कह रहा हूँ यूरोपियन यूनियन was the most serious country political unit. It is now promising to increase the reduction to at least, अभी इसको भी रिवाइज कर दिया, इस 40% टारगेट को दोबारा से रिवाइज कर दिया यूरोपियन यूनियन अंडर दिस यूरोपियन यूनियन डील क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। तो दोस्तों क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करना है, इस टारगेट को रिवाइज कर देते हैं हम लोग। It is now promising to increase the reduction to at least 50% and work towards 55%. Even at 40%, the European Union had the most ambitious emission reduction target among the developed countries. But now it is going to reduce by this much amount, 50%, 5% to 55% at these levels. And that is why, yes, definitely, this deal was welcomed. The EU also happens to be only one among major emitters to retain the 1990 baseline for emission cuts. तो सिर्फ एक यूरोपियन यूनियन है जिसने बेसलाइन अपना 1990 को चूज किया। No other country has took this base for emission cuts, originally mandated under the Kyoto Protocol. तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी ये बोला जाता था कि जो भी आप बेसलाइन लो आप 1990 को लो, पर पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने क्या बोल दिया कि आप लोग बेसलाइन भी खुद से चूज करो और अपने टारगेट्स भी खुद से चूज करो। What then happened कि सबने अपनी बेसलाइन डिफाइन करना स्टार्ट कर दी और टारगेट भी खुद से वॉलंटरली सबने दिए अपने अपने, ओके। तो somebody took this 2005 as a year, ओके, और कुछ कंट्रीज ने 2005 के बाद के ईयर 2010 को भी ले लिया किसी कंट्री ने, ऑब्वियसली, एंड इट इज नॉट यूजफुल बिकॉज़ 2010 2012 यदि आप बेस ईयर लेते हो then that means कि अभी pollution काफी ज्यादा हो चुका है, okay? So that is why, so most other countries have shifted their baseline to 2005 and even later under the 2015 Paris Agreement. So the Green Deal includes, इसको Green Deal भी बोलते हैं basically, the Green Deal includes sectoral plans to achieve these two overall targets and proposals for the policy changes that would be required. Although this deal is a welcome step, but there is no response from other big emitters, which is a need of the hour. In fact, countries like USA even do not want to participate in this particular agreement. Okay, so it's very unfortunate. Okay, so now we will see another topic, that is National Ganga Council. इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि पास्ट में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके, जैसे आई थिंक इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था दैट उस टाइम इस काउंसिल का नाम अलग होता था। तो एट दैट टाइम जो नेशनल रिवर गंगा जो काउंसिल है बेसिकली उसका पूछा था कि उसको चेयर कौन करता है, ओके, एंड देयर वाज 4 ऑप्शंस। सो इस तरह का प्रीलिम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में। सो द काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 2016। National Ganga Council was formed in 2016. It is an important body which is responsible for various government schemes regarding the cleaning up of river Ganga. जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग, सबसे मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ओके, which is responsible for various government schemes regarding the cleaning up of river Ganga. तो जो नमामि गंगे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा को साफ करने वाला, तो उसके अंदर बेसिकली एक काउंसिल बनाई गई, नेशनल गंगा
काउंसिल। उससे पहले भी ये काउंसिल ऐसा नहीं था कि ये अभी बनी, जब पहले क्लीन गंगा मिशन था उसके अंदर भी नाम सिर्फ अलग होते हैं इनके, बट दिस काउंसिल वाज देयर। सो द फुल नेम ऑफ काउंसिल इज दिस, नेशनल गंगा काउंसिल हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अदरवाइज इट इज नेम्ड एज नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। तो एग्जाम में फुल नेम भी आ सकता है इसका, तो ये नाम भी याद रखना। The council was framed under the River Ganga Rejuvenation, Protection and Management Authorities Order 2016। तो इस ऑर्डर से बेसिकली ये काउंसिल को बनाया गया था। So this order dissolved the National Ganga River Basin Authority। Yes, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। So इससे पहले नेशनल गंगा काउंसिल को नेशनल गंगा रिवर बसिन अथॉरिटी बोला जाता था। ओके, अब इसका नाम चेंज करके इसको नेशनल गंगा काउंसिल बना दिया। So this council has the overall responsibility of preventing pollution and rejuvenating the Ganga river basin, including the river Ganga and its tributaries. Its jurisdiction extends to the states which comprise of the Ganga river basin, namely UP, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, MP, Chhattisgarh, West Bengal, Rajasthan, Haryana, Jharkhand एंड दिल्ली एनसीआर। तो जहां से उसकी गंगा की ट्राइब्यूटरीज या गंगा रिवर खुद पास होती है, उन सारी स्टेट्स को बेसिकली इस वहां पर इस काउंसिल को बेसिकली का जुरिसडिक्शन दिया गया ताकि काउंसिल इन स्टेट्स के बारे में डिसाइड कर सकती है। व्हाट इज द नाउ कंपोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल? सो ऑब्वियसली द चेयरपर्सन और चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस नेशनल गंगा काउंसिल इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कौन है इस कमेटी के? सो प्राइम मिनिस्टर विल बी दिस चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल एंड जल शक्ति मिनिस्टर इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल। सो देयर आर अदर मेंबर्स लाइक चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कंसर्न्ड स्टेट्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, पावर, एनवायरनमेंट एंड वेरियस अदर यूनियन मिनिस्टर्स आर देयर एज a member of this particular council. And apart from that, the vice chairman of Niti Aayog is also a member of this particular council. And अभी हम context पढ़ते हैं कि why it was in news, ये news में था, definitely इसे हम पढ़ रहे हैं। So it was decided that National Ganga Council will meet every year। जब 2016 में ये बनी थी काउंसिल तो वैसा डिसाइड हुआ था कि हर साल इसकी मीटिंग हुआ करेगी, बट नहीं हुई, 3 साल तक इसकी मीटिंग नहीं हुई। बट नाउ first time in 2019, but for the first time in 2019, December 19 at Kanpur, UP, the meeting took place, and that is why it is important because National Ganga Council की पहली मीटिंग हुई है इस बार 2019 में दिसंबर में, and that is why it is very much important. So what is the aim? What is the aim of this council which has been which was proposed? To reinforce the importance of a Ganga-centric approach in all departments of the concerned states as well as relevant central ministries। तो जितने भी जो स्टेट्स के हमने नाम लिखे थे थोड़ी देर पहले, उन सारी स्टेट्स में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं गंगा से रिलेटेड, तो एक यूनिफाइड अप्रोच बनाई जाए। ओके, एंड उसमें सेंट्रल जो मिनिस्ट्रीज है उनका भी रोल हो, इसीलिए हमने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी इंक्लूड किया है इसमें। जैसे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को इंक्लूड किया हमने, वाटर मिनिस्ट्री को इंक्लूड किया। ओके, we included this finance ministry, power ministry, so all the ministries we included so that there could be some kind of coordination between states as well as union ministries. So the meeting discussed the concept of river cities। तो ये भी एक नया concept, एक नया terminology एक तरह से मीटिंग में इसके सामने आई है, river cities, and proposed to save and enhance the population of the Gangetic dolphin। तो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी जो इस काउंसिल में डिस्कस हुई, वन इज रिवर सिटीज एंड अदर इज द गंगेटिक डॉल्फिन। तो गंगेटिक डॉल्फिन के ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये नेशनल गंगा काउंसिल में डिस्कस हुआ था एंड इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज गंगेटिक डॉल्फिन। सो रिवर सिटीज तो हमें समझ में आता ही है, वो सिटीज जो रिवर के आसपास बनी हुई होती है उनको रिवर सिटीज बोला जाता है। एंड सिटीज हैव बीन बिल्ट अलोंगसाइड रिवर्स थ्रू आउट हिस्ट्री। और ऐसा नहीं है कि रिवर सिटीज अभी बनने लगी हैं, तो इनफैक्ट हमारी हिस्ट्री यदि हम देखें, सो इनफैक्ट हम हिस्ट्री स्टार्ट करें एज बैक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यदि वहां उस टाइम की बात करें, देन
At that time also the rivers, so the cities formed along the at the bank of the rivers. जैसे कि इंडस नदी, इसको सिंधु नदी भी बोला जाता है. So इंडस रिवर के ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी थी. ओके. इसी तरह से जो वैदिक एज बेसिकली आया वो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के आसपास वैदिक एज, वैदिक सिविलाइजेशन बनी थी. And many other important cities, okay, were formed at the bank of the various rivers. Okay, जैसे अयोध्या की बात करें, अयोध्या सरयू नदी के ऊपर था. Okay, so likewise there are many other cities. So these rivers can shape a city's success or cause its destruction. उस जमाने में ये सिटी रिवर के ऊपर डिपेंडेंट होती थी, और यदि रिवर खत्म हो जाती तो ये सिटी भी खत्म हो जाती थी. ओके, ऐसा हमने देखा भी है. बिकॉज जब जैसे हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिमोलिश्ड एंड व्हाई इट वाज लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं देन एक आंसर ये भी आता है कि मे बी बिकॉज दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के ऊपर डिपेंडेंट थी, मे बी एट दैट टाइम बिकॉज अभी ये जो रीजन जो ड्राई हो गया था, जैसे हम देखते हैं कि सरस्वती नदी अभी नहीं है. ओके, इट बिकेम इनलैंड रिवर नाउ. ओके, तो ये मे बी उस टाइम रिवर ड्राई होगी इसलिए ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई. ऐसा हम एक लॉजिक देते हैं. So definitely these rivers can cause the success or destruction of the cities. And even in modern days, because the fresh water shows either it is a river water or the groundwater or it is a lake. Okay, so obviously because this rivers can also act as this freshwater shores for any other purpose, for any purpose. Okay, and that is why the city success very much dependent on rivers. An action plan to provide sewer connection to every household in river cities or towns along the Ganga and its tributaries has been promised. तो इस मीटिंग में बात क्या हुई? Because river cities are very much important. Because these rivers are very much important for these river cities. और दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करती हैं. जैसे रिवर्स इफेक्ट करता है सिटीज को, तो सिटी भी इफेक्ट करती है रिवर्स को. बिकॉज यदि यहाँ से पोल्यूशन निकलेगा सिटीज जो रिवर्स के आसपास है, तो वो सीधा रिवर्स में आएगा. एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन टारगेटेड. वो जितनी भी सिटीज हैं या टाउन्स हैं जो रिवर के आसपास हैं, कि वहां पर हम लोग सीवर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सीवर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड. सो दिस वाज डिस्कस्ड. इसको भी ओपन ड्रेनेज नहीं होगा, सारा का सारा सीवर कनेक्शन के होते हुए उसको ट्रीट किया जाएगा वाटर को, और कोई भी म्यूनिसिपल वेस्ट या कोई भी इस तरह का वेस्ट रिवर में ना जाए, गंगा में ना जाए. तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका टारगेट रखा गया. And second most important discussion that took place in this Gangetic dolphin. So the Gangetic dolphin are one of the oldest creatures in the world. यदि हम कुछ ऐसे एनिमल्स सेलेक्ट करेंगे जो बहुत पुराने हैं, ओके, मे बी जुरासिक एज या उससे पहले भी, so Gangetic dolphin उन्हीं में से आता है एक एनिमल, ओके, which is very old, oldest creature in the world, one of the oldest creature in the world, along with some species of turtles, crocodiles, and sharks, according to the World Wildlife Fund. तो ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है, ये टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है, ये शार्क्स है, ये काफी ओल्ड है. In 2009, the Gangetic dolphin was declared India's national aquatic animal. जैसे कि नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का? Yes, what is national animal of India? Tiger. Tiger. तो इस तरह से ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ओके, नेशनल वाटर एनिमल है, and that is Gangetic dolphin. The Gangetic dolphin has been notified by the Assam government as the state aquatic animal too. तो असम ने इसको बेसिकली अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल, सॉरी स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी बनाया है. The dolphins only live in fresh water. ये याद रखना आप लोगों ने, एग्जाम में स्टेटमेंट आता है. So the dolphins only live in fresh water and are blind. इनकी आंखें नहीं होती. Then how they catch their prey? कैसे अपने शिकार को पकड़ती है डॉल्फिन, या कैसे मूव करती है? थ्रू अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. राइट, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. जैसे कि बेसिकली दिस बैट होती है, बैट बेसिकली मूव करती है साउंड वेव्स से, ओके, उनसे सोनार वेव्स निकलती है. उसी तरह से ये डॉल्फिन्स बेसिकली साउंड वेव्स से अपना मूव करती है.
So these dolphins have reduced in numbers in the last few decades, mainly because of direct killing, habitat fragmentation by dams and barrages, and indiscriminate fishing. इन सब कारणों से डॉल्फिन के बेसिकली नंबर्स कम होते जा रहे हैं. ओके, एंड ये भी याद रखना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, IUCN की. सो डॉल्फिन इज अंडर द एंडेंजर्ड स्पीशीज. डॉल्फिन इज an endangered species under IUCN Red List. So now we see initiatives taken by Government of India to conserve dolphin. हमारी कंट्री में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं to conserve this particular animal. So first initiative in the form of the Conservation Action Plan for the Gangetic Dolphin. ये प्रिपेयर किया गया था, Conservation Action Plan for the Gangetic Dolphin 2010 to 2020. क्योंकि 2020 आ गया, अभी ये खत्म होने वाला है ये Conservation Action Plan for Gangetic Dolphin. इस प्लान के बारे में जरा सा पढ़ लेना, 2-4 पॉइंट निकाल लेना, इसके कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, इसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया तो ये थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लो, बिकॉज 2020 में ये प्लान खत्म हो जाएगा. ओके, थोड़ा सा एक दफा देख लेना आप लोग. कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गंगेटिक डॉल्फिन फटाफट से देख लेना, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स वही याद रखना, अदरवाइज मत याद रखना. ओके, ये क्या था उसमें. सेकंड इज द गंगेटिक डॉल्फिन्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, which means they have the highest degree of protection against hunting. They are also one among the 21 species identified under the centrally sponsored scheme Development of Wildlife Habitat. तो डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एक बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई थी, तो उसके अंदर 21 स्पीशीज को डिमार्केट किया गया था जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है. So this dolphin was also one among these 21 species. Now our next important topic is Citizenship Amendment Act, CAA 2019. Obviously, it was the most talked topic of this last year, 2019. In fact, even for this year also till now. And कोरोना वायरस के बाद अभी सबसे ज्यादा जो न्यूज में था बेसिकली दैट वाज द CAA 2019. So definitely question can be asked for the CAA, और मेंस में तो डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन आएगा ही CAA के ऊपर. अब किस तरह से आएगा वो हम देखेंगे. ओके, अब ये सेक्युलरिज्म को लेकर क्वेश्चन आता है या किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं मेंस में, बट देयर डेफिनेटली क्वेश्चन कैन कम ऑन दिस CAA. And definitely for prelim also this question is important because सबने CAA के बारे में सुना हुआ है, आई एम श्योर सबने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, सारे पॉइंट्स पढ़े भी होंगे, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो यूपीएससी वाले को पता होती है, हम लोगों को नहीं पता होती, फिर उन्हें किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे इसमें CAA के ऊपर. ओके, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन निकाल सके कि इसके क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग. ऑन एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950, जब हम 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया, उसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950. देन वी एडेड वन पार्ट, हम लोगों ने पढ़ा भी था, पार्ट सेकंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से आर्टिकल्स हैं इसमें पार्ट सेकंड में? 5 to 11. 5 to 11, राइट. सो 5 to 11 है इसमें आर्टिकल्स. ओके, so it provides the citizenship based on domicile in the territory of India. The Constitution also recognizes the power of Parliament to make provisions with respect to acquisition and termination of citizenship. तो दोनों ये इस पार्ट सेकंड में कौन से आर्टिकल ने पावर दी थी पार्लियामेंट को टू मेक सिटीजनशिप एक्ट? यस, आर्टिकल 11. आर्टिकल 11. आर्टिकल 11 ने ये बोला कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो अपना एक्ट बनाए जिसके अंदर कि वो सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं या कैसे टर्मिनेट की जा सकती है, ये उस एक्ट के में बेसिकली लिखा होगा. ओके, सो देन डेफिनेटली द गवर्नमेंट फ्रेम्ड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 व्हिच डिसाइडेड अपॉन द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप. कौन कौन से तरीके हम लोगों ने पढ़े थे कि जिससे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, और कौन से 5 तरीके जिससे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है? यस, By birth, right, by descent, right,
By naturalization. पहले रजिस्ट्रेशन आएगा, यस, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, यस, देन लास्ट वन, यस, व्हाट इज लास्ट वन? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनदर टेरिटरी, ओके, जैसे दूसरी कंट्री को हम यदि एक्वायर करते हैं तो उनके सिटीजनशिप कैसे बेसिकली हमारी सिटीजन बन जाएंगे, सो दैट इज दीज आर द 5 बेसिकली वेज बाय व्हिच यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप। तो ये 5 वे हमने पढ़े थे। सो देन इन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के अंदर भी हमने 3 पढ़े थे, किसको याद है टर्मिनेशन के अंदर क्या थे? यस, तो ये सारी चीजें रिवाइज करो आप लोग, ओके, डोंट फॉरगेट। सो आगे चलते हैं। सो पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955, but these are the salient features of the C8 119, we will see what are the salient features of C8 119। तो सिटीजनशिप एक्ट बनाया है 1955 में, तो इस एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, ओके। सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था, सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करना है या कैसे सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है, तो इसके लिए हमने एक्ट बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। अभी इस एक्ट में बेसिकली अमेंडमेंट्स हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, ओके। So now what are the salient features of C8 119? So first, that it grants Indian citizenship to persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities who arrived on or before 31st December 2014. Okay, so पहले इस लाइन को डिकोड करते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो कौन से रिलीजन है जो बेसिकली जिनको सिटीजनशिप मिलेगी, ये देखो काउंट करो आप लोग, 6 रिलीजन है, ओके। अदरवाइज इंडिया में कौन से 8 रिलीजन माने जाते हैं? यस, 2 और कौन कौन से हैं? we consider that there are 8 religions in India. What are 2 other religions? Sir, Jews and Muslims. Right. The name of the religion is Judaism. Judaism में जो फॉलो करते हैं उसको जूइस्ट बोलते हैं, ओके। एंड इसी तरह से इस्लाम इज रिलीजन, उसको जो फॉलो करते हैं उसको मुस्लिम बोलते हैं। So other 2 religion is the basically this Islam and Judaism, or you can say the people who are Muslim and Jewish. तो वो दोनों इसमें नहीं है, ये याद रखना। तो एग्जाम में भी जूइस्ट यहाँ पर लिखते हैं, तो ये याद रखना कि जूइस्ट नहीं है। तो पहले तो ये याद रखना कि 6 रिलीजन है एंड मुस्लिम्स एंड जूइस्ट आर नॉट इंक्लूडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये याद रखनी चाहिए। सेकंड थिंग, दिस कट ऑफ डेट कि 31 दिसंबर 2014 से जो लोग पहले आए हैं सिर्फ उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगी। इसका मतलब 31 दिसंबर 2014 के बाद जो लोग इंडिया में आए हैं, माइग्रेट हुए हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ओके। तो ये कट ऑफ डेट आपको याद रखनी है। नाउ और क्या कंडीशन है? दैट इंडिया टू इंडिया, दिस पीपल हु केम टू इंडिया आफ्टर फेसिंग प्रोक्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये याद रखना। तो उन्होंने बोला कि जो अपनी कंट्री से निकाल दिए गए हैं बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन के ग्राउंड पर उनको कंट्री से निकाल दिया गया है। जैसे कि मान लो कंट्री को से निकालने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी पर्सन को, जैसे मान लो फर्ज करो बांग्लादेश ने कोई मान लो कि पॉलिटिकल रीजन से एक पर्सन को निकाल दिया कि अपोजिशन पार्टी का लीडर था और वो उसको बेसिकली प्रोसिक्यूट कर दिया कि वो एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी कर रहा था और वो हमारी कंट्री में आ गया, ओके। एंड ही वाज ए हिंदू या सिख था या बुद्धिस्ट था, ओके। तो उसको नहीं मिलेगा, ओके, सिटीजनशिप उसको नहीं मिलेगी, बिकॉज सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपने कंट्री से इसलिए निकाल दिए गए हैं दैट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ओके, रिलीजन के ग्राउंड पे निकाल दिए गए। जैसे मान लो पाकिस्तान से किसी हिंदू को निकाल दिया फैमिली, या जो हिंदू या हमारे इंडिया में आया तो उसने बोला कि मेरे को रिलीजन के ग्राउंड पे निकाल दिया गया पाकिस्तान से, बिकॉज मैं माइनॉरिटी में था, हमको परेशान करते थे इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। सो यही बात याद रखने वाली, दैट टू इंडिया आफ्टर फेसिंग प्रोसिक्यूशन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो सिर्फ ये 3 कंट्री से जो लोग आए हैं सिर्फ उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगी एंड नो अदर कंट्री,
is included in this CAA Act. तो तीन ही कंट्रीज हैं जिनके माइनॉरिटी जिनके बेसिकली ये जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड लोग हैं उनको बेसिकली सिटीजनशिप मिलेगी. पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश इफ दे फुलफिल कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप. यदि वो जो बाकी जो सिटीजनशिप मिलने की कंडीशंस हैं उसको यदि फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिटीजनशिप. और फुलफिल करने की और क्या कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि फर्ज करो कि हम ऐसे कंडीशन होती है कि जैसे कि 12 साल तक या 11 साल तक आपको रहना पड़ेगा इस कंट्री में. ओके, उसके बाद आप सिटीजनशिप मिलेगी. मान लो ये जो लोग आ रहे हैं अभी, ठीक है, इंडिया में अभी जिनको सिटीजनशिप मिलेगी, मैंने आपको 5 कैटेगरी के भी मैंने नाम लिए, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन. तो इनको मान सिटीजनशिप देनी है तो आप किस कैटेगरी में रखोगे इनको? यस, एनीबॉडी? Naturalization. by birth. By birth and by naturalization. So obviously answer is the by naturalization. बर्थ से तो कैसे हो जाएगा? बर्थ का तो मतलब ये कि जो इंडिया में जिसकी बर्थ हुई है सिर्फ उसी को मिलेगा. अभी किस कैटेगरी में आएंगे? ऑब्वियसली बाय नेचुरलाइजेशन आएंगे. ओके, तो मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, मुझे लगता है आप लोग भूल गए हो. बाय बर्थ का मतलब जिनका इंडिया में बर्थ हुआ है. ओके, एंड सेकंड चीज ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स भी इंडियंस हैं और जिनका इंडिया में बर्थ हुआ है. सेकंड थिंग दैट बाय डिसेंट का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स इंडियंस ही, बट हुआ क्या कि वो पेरेंट्स बाहर घूमने गए कोई फॉरेन में और वहां पर उनका चाइल्ड हो गया तो उनको बाय डिसेंट मिल जाएगा. भले उस बच्चे का बर्थ इंडिया में नहीं हुआ है लेकिन वो बिकॉज उसके पेरेंट्स इंडियंस थे और बाहर घूमने गए, उनका चाइल्ड हो गया तो उनको बाय डिसेंट मिल जाएगी. अब थर्ड आता है बाय रजिस्ट्रेशन. बाय रजिस्ट्रेशन में वो आएगा जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के थे, जो कभी ना कभी इंडिया में रहे थे, जिनके फोर फादर्स, ओके, और वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगा. फोर्थ इज बाय नेचुरलाइजेशन. इसका मतलब जो ओवरसीज इंडियंस थे जो कभी इंडिया में रहे नहीं या जिनके फोर फादर्स इंडिया में नहीं रहे, so that these persons can acquire citizenship from the naturalization. And fifth is the incorporation of territory. वो सब जानते हो, दूसरी कंट्री एक्वायर कर ली इंडियन तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी. सो यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं एक तरह से जो इंडिया में आ रहे हैं तो उनको बाय नेचुरलाइजेशन मिलेगी सिटीजनशिप. मुस्लिम्स फ्रॉम दोज कंट्रीज, कि आप लोगों में से शायद किसी ने ये सवाल नहीं पूछा मेरे से कि बाय रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मिल सकती उनको. या पाकिस्तान में जो लोग थे पहले कभी इंडिया में रहे थे उनको फोर फादर्स यस पर इंडिया एक ही होता था. एनी आइडिया? बिकॉज आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा मेरे से, क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप लोग आंसर दो इसका. सर शायद 2004 के बाद रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप बंद हो गई थी या as far as I know. एक्चुअली जिसको भी हम ये जो पाकिस्तान से बांग्लादेश या अफगानिस्तान के जो लोग हैं इनको हम उनके लिए ओआईसी कार्ड हम इशू नहीं करते हैं, पीआईओ कार्ड या ओसीआई कार्ड इशू नहीं करते हैं. ओके, उनको हम लोग इंडियन के सिटीजनशिप नहीं मानते, उनको इससे बाहर रखा गया है. ओके, बिकॉज दिस कंट्रीज वर कंसिडर्ड एज एनिमी कंट्रीज एज फार एज दिस पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. उस टाइम ऐसा माना जाता था कि ये कंट्रीज है, बिकॉज हमारा पूरा ये जो डिवीजन हुआ है, पार्टीशन हुआ था कंट्री का, तो इसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं कैटेगरी में नहीं रखते हैं इस कंट्रीज के लोगों को. ओके, इसलिए इनको जो फैसिलिटीज हमारे जो पीआईएफ कार्ड होल्डर्स को या ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मिलती है जो फैसिलिटी वो ये कंट्रीज के लोग क्लेम नहीं कर सकते. ओके, तो इसलिए इसको पीआई कैटेगरी में नहीं रखा जाता. ओके, एंड अफगानिस्तान के साथ भी वही था, सेम थोड़ा सा इश्यू था. इसलिए अफगानिस्तान के लोग तो डेफिनेटली वैसे भी काफी आई मीन टू से कि अफगानिस्तान तो वैसे भी हमारे कुछ इतना नहीं है, वहाँ पर इंसेस्टर्स नहीं थे उनके इंडिया में. ओके, तो ये रीजन था. तो ये तीनों कंट्रीज बाहर है पीआईओ कार्ड होल्डर से, इसलिए. सो मुस्लिम्स फ्रॉम दोज कंट्रीज वर नॉट गिवन सच एलिजिबिलिटी. तो मुस्लिम्स को ये एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है, ये जो बाकी कंट्रीज को दी गई है. दैट वाज द फर्स्ट टाइम रिलीजन यूज्ड एज ए क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप अंडर इंडियन लॉ. तो ये पहला ऐसा भी एक्ट आया है इंडिया में जिसके अंदर रिलीजन के बेस के ऊपर सिटीजनशिप डिफाइन की गई है. This was the first time that because हमने वहां पर साफ वर्ड्स में लिखा गया है the person who are persecuted from their countries based on religion. Okay, and that is what. Second point देखते हैं हम लोग अभी. This amendment act amends the third schedule of the 1955 act. ये जो amendment act है ये थर्ड शेड्यूल को अमेंड करेगा 1955 सिटीजनशिप एक्ट.
को इसलिए अमेंड करेगा टू मेक एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द सेड कम्युनिटीज फ्रॉम द एफोरसेड कंट्रीज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये थर्ड शेड्यूल है, ये बेसिकली नेचुरलाइजेशन के ऊपर बात करता है, तो इसको बेसिकली अमेंड करेगा। अमेंड करके करा क्या हम लोगों ने, क्या अमेंडमेंट की है, ये तो क्लियर है कि ये लोग जो आएंगे इनको सिटीजनशिप मिलेगी बाय नेचुरलाइजेशन। और नेचुरलाइजेशन के लिए पहले जो लिमिट होती थी वो, इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि जो लिमिट होती थी वो 12 इयर्स थी। ओके, नेचुरलाइजेशन की तो जो लिमिट है कि 12 इयर्स तक आपको कंट्री में रहना है तभी आपको मिलेगी। और जो 2016 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, इस तरह का एक्ट ऐसे पहले भी गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था। 2016 में जो गवर्नमेंट ने लेके आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016, एक पहले भी इस तरह का अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है जो कि पास नहीं हुआ था दोनों हाउस में। ओके, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो आया था उसमें बेसिकली इस 12 इयर्स को 11 इयर्स कर दिया था इन लोगों ने, कि जो 11 साल जो इंडिया में रहा है उसको भी बेसिकली सिटीजनशिप मिल जाए, जो 11 साल से इंडिया में। अभी इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या किया इन लोगों ने, इस 11 साल की एज लिमिट को फिर कम कर दिया, 5 साल कर दिया। ओके, तो अभी इन्होंने क्या रखा है कि द पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया फॉर इवन फॉर 5 years and belong to these religious communities and they came from the Pakistan, Afghanistan or Bangladesh, they could also acquire citizenship। तो भी ये याद रखना, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि ये जो लिमिट है अभी 5 साल कर दी है, वो डेफिनेटली 6 साल का भी देगा, बिकॉज जो 2016 में आया उसमें 6 साल, सॉरी जो 2016 में आया उसमें 6 साल लिमिट कर दी थी और अभी इसमें 5 साल की है। ओके, एंड दैट इज व्हाई दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन। तो ये याद रखना, ये जो लिमिट अभी नेचुरलाइजेशन की इन लोगों ने पर्टिकुलर इन लोगों के लिए 5 years कर दी है। ओके, नॉट फॉर ऑल पीपल, सिर्फ इन लोगों के लिए। सो इट विल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ, ये भी याद रखने वाली चीज है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा। ओके, वहां पर इन्फोर्स नहीं होगा ये। और क्या खास बात है इसमें, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के ये ट्राइबल शेड्यूल 6 के स्टेट्स हैं, राइट। तो शेड्यूल 6 के अंदर आती हैं ये ट्राइबल एरियाज जो है। शेड्यूल 6 में ये शेड्यूल 6 में क्या कहता है कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, सो दे आर इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट्स रेगुलेटेड बाय द, एक तो ये हो गया कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये ट्राइबल एरिया शेड्यूल 6 के जो एरियाज हैं उसमें लागू नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और कहां पर लागू नहीं होगा, ये जो याद रखने वाली चीज है, उन स्टेट्स में लागू नहीं होगा जहां पर इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वहां पर लागू नहीं होगा जहां पर 6th शेड्यूल के अंदर जो एरियाज हैं, एंड दीज एरियाज आर ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और ये एक्ट कहां पर लागू नहीं होगा, द स्टेट्स which is regulated by the inner line permit under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873। उन स्टेट्स में भी लागू नहीं होगा यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये है क्या, ये हम लोग पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो पहले बात करते हैं 6th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल में कौन कौन से ट्राइबल एरियाज आते हैं, तो ये याद रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बी एंगलोंग ऑफ असम, तो ये ट्राइबल एरिया है कार्बी एंगलोंग। तो ऐसा नहीं कि पूरी पूरी असम स्टेट में लागू नहीं होगा, ओनली ट्राइबल एरियाज ऑफ दिस स्टेट्स जो 6th शेड्यूल में आते हैं। तो कौन कौन से एरियाज आते हैं, कार्बी एंगलोंग ऑफ असम, गारो हिल्स इन मेघालय, चकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो इन एरियाज में ये इसलिए इन्फोर्स नहीं होगा। Further, the inner line permit regulates visit of all persons including Indian citizen to Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland. And Manipur has also been brought under the inner line permit regime through a recent Gazette notification, and this included December 2019. तो इनर लाइन परमिट में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। पहले ये 3 ही स्टेट्स आती थी। ओके, मतलब आपको ये इनर लाइन परमिट का मतलब ये कि यदि
हम लोगों को भी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड में विजिट करना है तो ये परमिट चाहिए। क्या परमिट चाहिए? इनर लाइन परमिट। तो इन स्टेट में विजिट करने के लिए हर पर्सन को एक परमिट चाहिए, वेदर इज अ आउटसाइड और वेदर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये अरुणाचल प्रदेश के बाहर कोई भी पर्सन है, इवन यदि मान मिजोरम से किसी पर्सन को अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो उसको इस परमिट को लेके ही जाना जा सकता है वो इंसान। सो there is a specific reason why we have created this inner line permit. Okay. अभी रिसेंटली मणिपुर को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, एंड दैट इज व्हाई दिस ईयर दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको इनर लाइन परमिट में इंक्लूड कर दिया गया है? तो या फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल आ जाएगा कि इनर लाइन परमिट में कौन कौन सी स्टेट्स आती है। तो ये याद रखना, मणिपुर को 19 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। वे 4 स्टेट्स हो गई इनर लाइन परमिट में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। इसका मतलब सीए कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगा? सीए शेड्यूल 6 के ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा, जिनके नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं। उसके अलावा ये 4 स्टेट्स हैं विच आर द पार्ट ऑफ द इनर लाइन परमिट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। इन स्टेट्स में ये सीओ लागू नहीं होगा, सीए लागू नहीं होगा। सो ये चीज याद रखने वाली है। सो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। व्हाट इज दिस इनर लाइन परमिट सिस्टम? बिकॉज ये एग्जाम में भी आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, एंड मेंस में भी आ सकते हैं। So this inner line permit system concept came from colonial period. तो हमारे colonial period से ब्रिटिश टाइम से ये basically concept आया था। So under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873, okay, the British framed regulations restricting the entry and regulating the history of outsiders in designated areas. तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। उसके अंदर लिमिटेशंस क्या लगा दी कि कुछ एरिया डिफाइन कर दिए जहां पर कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकता। उनका रीजन क्या था ऐसा करने के लिए? बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट्स बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, दैट मींस इंडियंस, फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन दीज रीजन्स। ओके, तो उनके कमर्शियल इंटरेस्ट थे बेसिकली। ये जो एरियाज थे, जैसे कि ये जो खासकर नॉर्थ ईस्ट एरिया था, ओके, जो ईस्टर्न फ्रंटियर जिसको लोग बोलते थे, जिसको आजकल हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो जो एरियाज थे, दीज एरियाज वर वेरी मच रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो काफी नेचुरल रिसोर्सेज थे इस एरिया में। इनफैक्ट खासकर जो टिम्बर था या जो भी फॉरेस्ट रिजर्व्स थे वो काफी ज्यादा बेसिकली। तो वहां पर इन लोगों का ये था कि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बिकॉज दीज आर वेस्ट कॉस्टली, तो इसके ऊपर जो ट्रेड करेंगे वो हम ही करें। ओके, जो इंडियंस हैं वो इस एरिया में आकर ट्रेड ना कर सके, इसलिए उनको बाहर रखा गया था इस एरिया से। ओके, तो जो ब्रिटिशर्स का जो रीजन था इस इनर लाइन परमिट को लॉन्च करने का अंडर दिस एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, तो ये था। But when India became independent, 1950 में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और इंडिपेंडेंट हो गए, ओके, एंड देन द इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस्ड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स विद सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इस वर्ड को हमारी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, एंड वी क्रिएटेड दिस सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन इस एक्ट को हमने रख लिया, इनर लाइन परमिट को हमने अडॉप्ट कर लिया। बट हमारा रीजन अलग था अडॉप्ट करने का। जो ब्रिटिशर्स थे उनका रीजन था कि वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। But why we adopted this particular inner line permit kind of scheme? Because we wanted to protect the tribal people of the northeastern region. Because हम लोग जो tribes थे उनको protect करना चाह रहे थे, and that is why we adopted this inner line permit system. So this was to address the protecting the interests of the people of northeast India. These IPS inner line permits are issued by respective states. Maybe ILPs are issued by respective states. इसका मतलब यदि आपको परमिट लेना तो रिस्पेक्टिव स्टेट से लेना पड़ेगा। जैसे आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो आपको अरुणाचल प्रदेश के ऑनलाइन बेसिकली परमिट मिल जाते हैं। तो आपको वहां पर एक उसकी वेबसाइट खोल के वहां पर आपको परमिट लेना पड़ेगा, देन यू कैन मूव टू दिस एरिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनर लाइन परमिट। तो ये तो हो गया कि सीए क्या था, और इसके जो भी जिसके ऊपर प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए इसमें। और आई डोंट नॉट थिंक कि इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा प्रीलिम में।
जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक CAA को. And if you have read something else, so definitely you can share in Telegram channel. Okay. So now we will see what are the issues with CAA 2019. Okay. ये थोड़ा सा मेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम इसको बेसिकली क्रिटिसाइज करने वाले हैं अभी कि व्हाट आर द इश्यूज विद CAA 2019. एक बात याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन आता है यदि एग्जाम में, देन यू विल राइट बोथ व्यूज. एक तो आप उसके फेवर में भी बोलोगे कि कुछ इससे फायदे क्या हो सकते हैं हमें CAA के, आप अगेंस्ट में भी बोलोगे. ओके, कि इसमें क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली तो करना ही है हमको, तो दोनों चीजें आपको लिखनी है एग्जाम में. ऑल्दो यू वांट टू क्रिटिसाइज, ऑल्दो वी क्रिटिसाइज ओनली द CAA, स्टिल यू राइट बोथ पॉइंट्स. आपको प्रो में भी बोलना है और एंटी CAA भी बोलना है, दोनों स्टैंड रखने हैं एग्जाम में. एंड देन कंक्लूजन. कंक्लूजन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कर देना, सिर्फ एक व्यू मत देना. फर्ज करो कि आपका कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो राइटिस्ट है, एंड उसका मानना है कि ये CAA सही है, तो ऑब्वियसली बाय वन वी विल टेक ए रिस्क. तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, आपको अपना पेशेंस रख के ओके आपको इसका आंसर लिखना है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज विद CAA. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म दैट इज बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, एंड सेक्युलरिज्म इज a basic structure of the constitution. Or secularism, as we know, that it is a basic structure of the constitution, so having citizenship criteria based on religion is against the principle of secularism. अब secularism preamble में भी आता है, जो constitution हमारे जैसे start होता है preamble that India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republican union. Okay, तो इसलिए ये basically this is against our the basic structure. और इसके अलावा आर्टिकल 25 to 28 they also talk about freedom of religion, secularism. Okay. So second thing that this particular act is against the right to equality. अब इसमें जो बात समझने वाली है वो समझो आप लोग. How it is against the right to equality? Because it is a fundamental right available to citizens as well as aliens. इसका मतलब जो हमारे इंडिया में लोग रहते हैं और जो बाहर से लोग होते हैं, फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फंडामेंटल, उनको भी ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है. हमने पढ़ा भी था, हमने लिस्टिंग भी की थी कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, और कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए भी हैं और आउटसाइडर्स के लिए भी. इसका मतलब यदि कोई पर्सन, आउटसाइडर पर्सन यदि कोई इंडिया में रह रहा है, एंड इट इज नॉट एनिमी एलियन, यदि वहां कोई दुश्मन नहीं है हमारी कंट्री का, जस्ट एक रह रहा है आउटसाइडर, तो उसको भी राइट टू इक्वालिटी ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है. दैट मींस यदि उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है आउटसाइडर का, then that person can also go to direct Supreme Court, okay, to enforce this fundamental right. And that is why, because this particular right to equality is available to citizens as well as aliens, and that is why it is against this right to equality, which is a fundamental right. तो जो भी बाहर से आए हैं, माइनॉरिटी के लोग जो आए हैं, कुछ लोग उसमें मुस्लिम्स हैं, कुछ लोग हिंदूज हैं, तो जो मुस्लिम्स हैं जो बाहर से आए हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर दैट यस ये हमको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा. Okay? So it excluded other neighboring countries like third criticism क्या है, that किसने ये 3 कंट्रीज को इंक्लूड किया है, बट बाकी नेबरिंग कंट्रीज का क्या, उनको इंक्लूड नहीं किया है. और जब हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारे मिनिस्टर्स से कि क्यों नहीं इंक्लूड किया अपनी दूसरी कंट्रीज के लोगों को, then what they reply, क्या आंसर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मेड एन आर्गुमेंट दैट द 3 कंट्रीज हैड स्टेट रिलीजन. ये जो 3 कंट्रीज जिनको हमने दिया है ये राइट, तो उनका अपना स्टेट रिलीजन है. जैसे पाकिस्तान का इस्लाम स्टेट रिलीजन है, लाइकवाइज बांग्लादेश, लाइकवाइज अफगानिस्तान, इनका अपना स्टेट रिलीजन है. और जो ये जो कंट्रीज है इनका अपना स्टेट रिलीजन नहीं है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गिविंग. बट नेपाल हैज स्टेट रिलीजन एज वज्रयांग बुद्धिज्म, while श्रीलंका इज patronizes Buddhist religion. Okay, तो डेफिनेटली इन स्टेट्स को, इन कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जा सकता था, बट गवर्नमेंट डिडंट गिव. तो ये भी एक हम कह सकते हैं दैट यस गवर्नमेंट वाज बिकेम द पार्शियल. सो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज द नैरो फोकस. अगला क्रिटिसिज्म ये है कि दैट यस नेपाल का स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म है या बुद्धिज्म है? आई थिंक वज्रयांग बुद्धिज्म ही है.
उसको चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। मे बी ये न्यूज आइटम्स की चीज मैंने यहाँ पर लिखी है आप लोगों को, यदि आपको थोड़ा डाउट है इसमें चेक कर लेना आप लोगों को। सो आई थिंक स्टेट रिलीजन वज्रैन बुद्धिज्म है, स्टिल यू नीड टू चेक इट। बिकॉज है क्या कि जैसे मैंने बताया था कि नेपाल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक तो तराई रीजन है नेपाल का, जहाँ पर मधेशी लोग रहते हैं जो कि हिंदूज हैं, और अदरवाइज जो वैली रीजन में रहते हैं वहाँ पर काफी बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं। सो इसको आप चेक कर लेना हम लोग स्टेट रिलीजन क्या है नेपाल का। सो नैरो फोकस, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज द नैरो फोकस। इट हैड ओनली इंक्लूडेड ओनली रिलीजियस। यदि इनका मान लो नहीं भी है, तो मान लो फर्ज करो कि नेपाल का स्टेट रिलीजन नहीं भी है, then still it follows one major religion। ओके, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को बेसिकली ज्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पे। तो भी हम जैसे हमने कहा कि श्रीलंका का कोई स्टेट रिलीजन तो नहीं है, बट इट पैटर्नाइजेस बुद्धिस्ट रिलीजन। और वहाँ पर जो जाफना पेनिनसुला है वहाँ पर हमारे तमिलियंस लोग रहते हैं, हिंदूज लोग रहते हैं। तो अब ये जो जाफना पेनिनसुला से जो हिंदू जो लोग ये माइग्रेट कर रहे हैं तमिलनाडु में या हमारे कंट्री माइग्रेट कर रहे हैं, तो फिर तो उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए सबको, जो भी जाफना पेनिनसुला से लोग जो आ रहे हैं तमिलियंस, और वहां पर उनको नहीं देते। इनफैक्ट वो हिंदूज माइनॉरिटी में भी है श्रीलंका में। एंड श्रीलंका में जो बेसिकली सिन्हालीज बेसिकली रिलीजन को फॉलो किया था या बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो किया था, ये 2 रिलीजन को बेसिकली वो लोग फॉलो करते हैं श्रीलंका। तो डेफिनेटली वहाँ के हिंदूज को भी देना चाहिए श्रीलंका के हिंदूज को, so government didn't make this kind of revision. So narrow focus, next criticism is the narrow focus. It had only included only religious persecution and not political and sectarian persecution. जैसे कि मैंने बोला था कि जो एक्ट है इसके अंदर सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूशन की बात हुई है, and not the political and sectarian persecution. Okay, that's another criticism. Okay, तो जैसे कि एथिस्ट इन बांग्लादेश, मान लो कोई पर्सन जिसने जो रिलीजन को फॉलो करता ही नहीं है, एथिस्ट है, उसको आप लोग सिटीजनशिप नहीं दे रहे। ओके, so definitely, so other persons are not included, like political and sectarian persecution. Likewise, Shias और Ahmadiyas मान लो कि पाकिस्तान से आए हैं और वो अपनी कंट्री में माइनॉरिटी में भी हैं, because they do not consider them Islam, this Sunnis. Okay, Ahmadiyas है, वो कहते हैं कि हमारा अलग सेक्ट है, हम लोग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो वो माइनॉरिटी में हो गए एक तरह से पाकिस्तान में, बट these persons are not given citizenship. नेक्स्ट, इस तरह से एनालिटिकल स्टेटमेंट्स आ सकती हैं प्रीलिम में भी। So differential treatment threatens social integration as Muslims fear that if a nationwide national register of citizens brought and if they fail to furnish the required documents, they would be uprooted from the country. So इस एक्ट से बेसिकली एक इंटीग्रेशन जो हमारी कंट्री में, सोशल इंटीग्रेशन हमारी कंट्री में जो था वो भी टूट रहा है। बिकॉज व्हाई? बिकॉज मुस्लिम्स are under fear that because of this NRC, because of this Citizenship Amendment Act and NRC, definitely they could be uprooted from the country if they could not produce the required documents. And the most important point, that if we are making the CAA, okay, then that means we are approving the two-nation theory that was given by the Muhammad Ali Jinnah. Because Muhammad Ali Jinnah ने पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी क्यों बोला था, पाकिस्तान की डिमांड क्यों की थी? Because Muhammad Ali Jinnah said that in India the Muslims are not secure because this Congress party is dominated by the Hindu religion people, Hindus, because this Congress party is dominated by the Hindus, and that is why we can never get this political freedom in future if we become the part of India. And that is why he demanded a state based on religion, that is Pakistan. Okay, but जो हमारा क्या स्टैंड था, जब मोहम्मद अली जिन्ना ये बात बोल रहा था तो हमारा क्या स्टैंड था? And what Jinnah demanded the partition of the country, partition of the India on 50-50 area basis, 50-50 area basis. That means जो भी ब्रिटिश इंडिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, इक्वल एरिया शुड बी गिवन टू हिंदूज, इक्वल शुड बी गिवन टू मुस्लिम्स, बिकॉज़ दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। बट व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम? कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया? दैट वी डू नॉट अप्रूव दिस टू नेशन थ्योरी। तो कांग्रेस का हमेशा स्टैंड यही रहता था, ये जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वेदर इज महात्मा गांधी, वेदर इज जवाहरलाल नेहरू, वेदर इज वल्लभ भाई पटेल, व्हाटएवर, वेदर इज अब्दुल कलाम, okay,
सो इनका क्या स्टैंड रहता था? इनका स्टैंड ये रहता था कि यस, दिस टू नेशन थ्योरी इज रॉन्ग because India is only one country, and these Muslims, although they become the now adopted this Muslim religion, but they are living in this particular land, India, from lifelong. Their ancestors are basically Hindus, okay? और हमारी कंट्री में कब से रह रहे हैं? That is a different thing कि उन्होंने इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया, but this religion cannot be as a criteria, okay, to divide this country, okay? तो उन लोगों ने इसको रिजेक्ट किया कि ये कंट्री एक ही है, and all kind of religions can live in this country. Okay, and it's not a Hindu land, it's a India. Okay, so यहाँ पे कोई भी रिलीजन के लोग रह सकते हैं, and they discarded these two nations. So इसलिए उन्होंने जो because जो कांग्रेस के जो इनफैक्ट जो मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग्स में जो मुस्लिम्स थे, उससे ज्यादा मुस्लिम्स तो कांग्रेस पार्टी में थे, जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे. ओके, सो दैट इज व्हाई उन्होंने बोला कि 50-50% एरिया से बेसिकली डिवाइड नहीं किया था कंट्री को. तो जहां पर जिन्ना को बेसिकली मेजोरिटी लगती है, जहां की पार्टी को मेजोरिटी वोट्स मिली है, या जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में लोग रह रहे हैं जिस एरियाज में, सिर्फ उन्हीं का डिवीजन होगा. तो इसीलिए पंजाब का डिवीजन हुआ और बंगाल का डिवीजन हुआ, बिकॉज वहां पर जो एरियाज में मुस्लिम लोग मेजोरिटी में रह रहे थे. तो बाकी जब जितनी भी जगह थी, बाकी सब जगह पे बेसिकली इंडिया बना. ओके, एंड वी रिजेक्टेड दिस टू नेशन. बट नाउ अभी हमने सीए लेकर आए. So now, because we are proving that this two nation exist in India by making this CAA, एक तरह से हमने मोहम्मद जिन्ना के ऊपर स्टैंप लगा दिया कि ये जो आप बोल रहे थे सही था. बिकॉज आप देखो कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद तो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बना है क्या हमारा कंट्री में? ओके, और मुस्लिम मिनिस्टर भी कोई बनता है तो वो एक या दो बन जाते हैं कभी कभार. ओके, जैसे कि अभी करंट गवर्नमेंट में एक माइनॉरिटी मिनिस्टर बेसिकली, इनफैक्ट अभी तो माइनॉरिटी मिनिस्टर भी अभी है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा. बीच में तो एक बार ऐसा हुआ था 2019 के जो इलेक्शन हुआ था, माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी नहीं बनाया था इन लोगों ने. आई थिंक अभी तो है. ओके, तो एक का तो मिनिस्टर बन जाता है. ओके, अदरवाइज कभी प्राइम मिनिस्टर कभी हमने देखा ही नहीं. यस, वी हैव सीन दिस प्रेसिडेंट एज ए मुस्लिम प्रेसिडेंट, दिस मिस्टर अब्दुल कलाम. ओके, सो वी हैव सीन द प्रेसिडेंट, बट यस देयर वाज नो प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर. कभी होम मिनिस्टर नहीं देखा हम लोगों ने, मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इस तरह की चीजें नहीं देखी. So definitely, and that is why this was against this, and in fact we are approving this two nation. So next point is the concern of Northeast. So there is an emotive issue in Assam where indigenous people view the Bengali-speaking outsiders. Also, they fear that CAA would trigger influx of more Hindus from Bangladesh. This might lead to demographic reshuffling in the region. सो असम में तो ऑलरेडी वहां पर आपको पता है कि ये जो असम में जो लोग वहां के लोग हैं जो असम के, सो दे आर अगेंस्ट दिस इनफ्लक्स ऑफ द आउटसाइडर्स इन असम. यदि मान लो कि जो असम में जो बाहर से जो आए हुए हिंदूज या जो और माइनॉरिटी के लोग हैं, यदि उनको सिटीजनशिप मिलती है, देन डेफिनेटली द नेटिव पीपल ऑफ असम कैन रिवोल्ट against this. Not only can remove, not only can revolt, in fact they are revolting against the CAA. नोटिस के लोग काफी रिवोल्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, बिकॉज दे आर अंडर फियर दैट देयर राइट्स वुड बी अंडरमाइंड, बिकॉज गवर्नमेंट उनको लैंड भी प्रोवाइड करने की बात कर रही है और एवरीथिंग. ओके, एंड जॉब्स भी प्रोवाइड करने की बात कर रही है. सो दैट डेफिनेटली दिस इंडिजिनस पीपल अंडर फियर. नेक्स्ट इज द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मुस्लिम मेजॉरिटी. कंट्रीज वुड बी अफेक्टेड, गल्फ कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. सो हमारे जो इंटरनेशनली जो हमारे रिलेशंस काफी अच्छे थे गल्फ कंट्रीज से, वेदर इज ईरान, वेदर इज सऊदी अरेबिया, वेदर इज यूएई के साथ हम जॉइंट एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं ऑयल्स वगैरह का इंडिया में. ओके, एंड यूएई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया आल्सो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडोनेशिया, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडोनेशिया, बट ऑल these countries are now criticizing India. Okay, and not only the Muslim majority country, in fact the European Union also, European Union में भी कोई रिसेंटली वहां के पार्लियामेंट में resolution पास हुआ था against this CAA, and that is why it was not good move by India, because we are criticized all over the world over this CAA issue, and definitely we are on the back foot. Okay, obviously चाहे गवर्नमेंट आपको नहीं बताए, but internationally yes, we are on the back foot. Earlier we were taken as a liberal, earlier we were taken as a this ethical country, but now after this CAA definitely we are on the back foot international. So this is it with this particular class.
So after 5 or 10 minutes, we will start with the art and culture. Okay? So if you have any doubt, you can clear write it now. Yes? Any doubt? Okay.